ओके, सो मुझे बहुत ही एक लॉन्ग कट लेके Yes, आना sir. पड़ा। ओके ओके, अभी अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी स्क्रीन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, सो देर इज नो इश्यू। Now I'm sharing my screen with you. If you see the screen, if you see my screen, please let me know. Can you see my screen? Yes, sir. Great, great. Okay, so exercise 2A में किसी को कोई डाउट है? Please say yes or no so that we can go ahead. No, sir. Okay, great. Uh, 2B में किसी को कोई डाउट है? 2B, कोई डिस्कशन करना है किसी क्वेश्चन का? मेरे को बताओ, मैं करूंगा। Please tell me yes or no. I cannot see you, so No, sir. okay. 2C में किसी ने डाउट पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, two forces are applied on a block of mass 2 kg. How much force should be applied and in which direction to produce an acceleration of 1 meter per second square? The surface is smooth. Towards left or towards right? Towards left and towards right. You have to answer in both the conditions. So as we can see, there is a block whose mass is 2 kg, and we have to produce an acceleration of 1 meter per second square. How much force should be applied and in which direction to produce an acceleration of 1 meter per second square? Okay, now see, force, let me show you, just a moment. ये मेरे माउस को क्या हो गया अब यार? या गॉट इट। ओके, इतना ही जगह चाहिए मुझे, ठीक है। सो वी नो दैट force is equal to mass times acceleration, right? Now two forces are applied on a block of mass 2 kg. One is 10 newton force and one is 5 newton force. So we'll take case 1, where the force is equal to 10 newton, ठीक है, and the mass is 2 kg. So we can find the acceleration. The acceleration will be equal to force upon mass. Force is 10, mass is 2. So acceleration produced will be 5 meter per second square, and this will be produced in which direction? In which direction? This force will be, how much force should be applied? 10 Newton should be applied or 5 Newton? That's what they are asking, okay? So this acceleration, if we are considering just 10 Newton force, this acceleration will be produced towards right. How much acceleration? 5 meter per second square. But how much acceleration do we want? We want 1 meter per second square acceleration. I think the question is a little bit more complex than it looks. We want an acceleration of 1 meter per second square, and we have to apply a third force. Okay, so can anybody help me here? Let's say Pritha, are you there? Pritha, can you hear Yes, me? sir. Yeah. So can you tell me what is the resultant of these two forces? Sir, 5 Newton. In which direction? Right. Okay, okay. So the resultant. Sir, what I have done is Okay. I just saw the picture, Mm-hmm. and if we see logically,
the 10 Newton is much more than 5 Newton, so it Yeah. should be right direction. No, but we want an acceleration of 1 meter per second square. With 10 Newton, we are getting an acceleration of 5 meter per No, second square. the question asked just in which direction, towards left or towards right? Yeah, no, but this is also the question, na? How much force should be applied? That we have to answer, na? Okay. For that, we need to find the resultant. So, resultant of two forces, and that is 10 Newton and 5 Newton, will be plus 10 minus 5, which is equal to plus 5 Newton towards right side. Okay, so this is the resultant force. Now we will draw one more diagram. We will draw one more diagram here, such that there are no two forces, there is just a single force. Okay, and this single force is how much? Of 5 Newton, and this is towards right side. Okay, now we have to apply a third force. How much force should be applied and in which direction to produce an acceleration of 1 meter per second square, they are asking. See, the mass over here is 2 kg. Okay, now how much force must be applied and in which direction? Now see this. See, force is equal to mass into acceleration. We already have the force 5 Newton. We already have the mass, which is 2, and we want the acceleration to be 1 meter per second square. See, in this condition, the acceleration will be 2.5 meter per second square, right? So we want the acceleration of 1 meter per second square. In which direction we don't know, but we want the acceleration to be 1. Okay, so I will just erase this and write, since acceleration is equal to 1 meter per second square and mass is equal to 2 kg, mass is equal to 2 kg, therefore force required is equal to mass into acceleration, which is 2 multiplied by 1, which is equal to 2 Newton. So the resultant force should be how much? 2 Newton. New resultant force should be 2 Newton. See, now this body had two forces on it, plus 10 Newton and 5 Newton in opposite direction, whose resultant comes out to be 5 Newton in right side. Okay, we want this 5 Newton to become 2 Newton. How can you make this 5 Newton into 2 Newton? Can you tell me? How can you make this 5 Newton? Sir, if we produce a force of 7 Newton in the opposite direction, opposite of 5 Newton. Then it will become minus 2. We want resultant force to be of 2 Newton plus 2 Newton. So we will apply a third force in opposite direction but of 3 Newton. Do you agree? Now the new resultant, in this case, new resultant after applying 3 Newton force towards left side becomes 5 plus 5 minus 3, that is 2 Newton. So the new resultant force should be 2 Newton, and it is 2 Newton now. Now what will be the acceleration? Therefore, now acceleration will be equal to 1 meter per second square, because the new resultant force is 2 Newton, mass is also 2 kg, so acceleration will be 1 meter per second square. In which direction? Can you tell me in which direction this acceleration will be? This acceleration will be in the direction of the larger force, that is towards right side. Okay, so I understand this is a little confusing question for many students, but try to understand what they are asking. See, there are already two forces on this block, 10 Newton and 5 Newton. Okay,
if we consider one of these forces, we are not getting this acceleration of 1 meter per second square. If we consider the resultant force of these two, that is 5 Newton in right direction, still we are not getting 1 meter per second square. But then what we did with was we asked this question that, okay, the force is 5 Newton in right side. But if we want to produce an acceleration of 1 meter per second square, how much the force should be? Then the force came out to be 2 Newton. Now how to make this 5 Newton into 2 Newton? By applying 3 Newton force in the opposite direction. So new resultant force will become 2 Newton and new acceleration will become 1 meter per second square towards right side. Okay, so this the resultant now is 2 Newton and the acceleration now is 1 meter per second square, which was the required acceleration, and the answer is towards right. Okay, so answer is towards right, and how much force should be applied is 3 Newton should be applied towards which direction? Towards left direction. Did you understand? किसका डाउट था ये, प्लीज टेल मी. सर आर्या. आर्या, तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, बट दिस इज द राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग इट. ठीक है, Yes. ये वीडियो में Yes, रिकॉर्ड sir. कर रहा हूँ. सो अगर तुम्हें डाउट है फिर से देखना, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है अभी पूछ सकते हो. अगर क्वेश्चन है तो, नहीं है बाद में क्वेश्चन आता है तो बाद में भी पूछ सकते हो. ठीक है? Okay, sir. ठीक है, Yes, shall we sir. go ahead? Yes, sir. Okay, great. Next doubt is 11th. किसी ने 11th वाला डाउट पूछा है. A body moves with constant velocity of 20 meter per second. The mass of the body is 2 kg. The unbalanced force acting on the body is, ये तो बहुत इजी है. तो अनबैलेंस फोर्स पूछा है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. अनबैलेंस फोर्स में फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, नाउ बॉडी का मास कितना है? 2 kg. और एक्सेलरेशन कितना है? सी, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, आई डिड नॉट सी दैट. एक्सेलरेशन नहीं है. क्यों नहीं है एक्सेलरेशन? पता है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है. कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है. अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स होगा ही नहीं. अनबैलेंस फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन. 0 न्यूटन होगा यहाँ पे आंसर. कितने लोगों को ये करेक्ट आया था 0 न्यूटन? सर मानस मैं. सॉरी, मानस सर. मानस को करेक्ट आया था. और किसको करेक्ट आया था? Sir, Mrinmay. करेक्ट आया था. तुमको समझ में आया ना ये वाला? Yes, sir. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट डाउट जो पूछा है मुझसे, अगर कोई डाउट किसी का नहीं टिक किया है मैंने तो मुझे बताना. ठीक है, मेरे को जो भी ग्रुप में डाउट पूछे थे मैंने सारे इसमें मार्क करके रखे हैं. तो मैं नेक्स्ट डाउट पे जा रहा हूं, वो है 19th क्वेश्चन. द ग्राफ शोज द रिटार्डेशन ऑफ द कार ऑफ मास 1000 kg. फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स. अच्छा, सबसे पहले ये गीतिका का डाउट है. इजंट इट राइट गीतिका? गीतिका, Yes, sir. या गीतिका. गीतिका, टेल मी दैट what graph are you seeing in the figure? The velocity time. Yes, it is a velocity time graph or a speed time graph. Both are same thing. Okay, so it's a VT graph, velocity time graph. So in velocity time graph, if you need to find the acceleration, or in this case maybe retardation, how will you find? How do you find acceleration or retardation in a velocity time graph? How do you find acceleration? Acceleration is equal to slope of VT graph. Do you remember? Right, Geetika? Okay. So acceleration is slope of VT graph. Aniketa, you there? Aniketa? Yes. Aniketa, you are there? Yes, please tell me how to find slope. Formula for finding slope. So we have to take the area of the under the slope. No, I'm sorry. That is for displacement. Displacement from velocity time graph is area under the graph. How to find the slope? I'm asking the formula for slope.
Sir, rise by run. Who is this? Sir, Pritha. Very good beta, rise upon run. बहुत बढ़िया. So this is the rise. ठीक है, vertical हमेशा rise होता है and horizontal is run. What is the rise value? 5. What is the run value, horizontal value? 4. So how much is the slope? 5 by 4. Can you tell me in points 5 by 4 कितना होता है? 1.25 meter per second square. 1.25. Are you sure about that? 1.25 meter per Yes, sir. second square. Okay, so we got the acceleration. Now acceleration is known, mass is known. You can find the retarding force. Sir, shouldn't it be minus It should 1.25? be. It should be minus 1.25 because this slope is negative slope, and they have already mentioned that it is retardation. So you are correct, Pritha. So it is my mistake. I will make it minus. Okay. Now the retarding force will be mass into retardation or negative acceleration. So mass is 1000 kg multiplied by minus 1.25, which is minus 1250 Newton. This is the retarding force. This is the force actually. Retarding force में minus नहीं लगाना है साइन. Retarding word use करोगे तो minus नहीं लगाना. Did you understand, Gitika? गीतिका समझ में आया बेटा? Okay, Gitika, you're there. Okay, ठीक है. So I think she got it. If not, then she will look at the video. 2D, कोई डाउट है 2D में? 2D में कोई डाउट है किसी को? नहीं है? 2D में कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं. 2E बहुत सारे डाउट है यहाँ पे. 8th वाला है, फिर 9th, 10th, 11th, 14th, 15th एंड 17th सारे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले मैं मैसेज कर देता हूँ दूसरे ग्रुप को जिनका लाइव क्लास है आपके बाद कि आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से लेट हो चुके हैं. सो जस्ट मोमेंट. Please wait for 15 minutes. I'll share the link. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 पहला डाउट है. 8 से पहले कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? 8 से पहले कोई डाउट है? So if no, No, one is sir. okay, if no one is replying, I have to go ahead. Okay. ठीक है. Oh my God. ये तो प्रॉब्लम कर दिया मैंने. रुको. हाँ, अब सही है. ठीक है. 8th वाला क्या है प्रॉब्लम? दो बच्चे दिख रहे हैं मुझे. वो स्केटबोर्ड पे एक दूसरे को टकराते हैं. कोलिजन हो रहा है दोनों में. आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्केटर्स है ये. दोनों का मास पता है, दोनों की वेलोसिटी पता है, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है. अच्छा, दोनों स्केटर टकराने के बाद दे जॉइन देयर हैंड्स एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? दिस इज व्हाट समबडी हैज आस्क्ड मी एज डाउट. ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल में भी बताया था. चलो, अब मुझे कौन बताएगा? लेट मी थिंक ऑफ अ नेम. संजोत, आर यू देयर? संजोत? Yes, sir. Sanjot, please tell me this problem will be solved using which principle? Conservation of linear momentum. Correct. So using conservation, मैं हर एक बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूं because I want to tell you कैसे लिखना है. So using conservation, using the principle of, I'm sorry, using principle of conservation of linear momentum. क्या लिखूं बेटा संजोत? Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Very good beta, very good.
इतना अच्छा लगता है ना जब कोई बच्चा बोलता है जो मैंने सिखाया है, वो भी वीडियो में देख के, सोचो मतलब क्या इतना अच्छा लगता है किसी भी टीचर को। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, संजो? MA UA plus MB UB ओके, is equal ए और to बी के टर्म्स में हम लोग नहीं करेंगे, 1 और 2 के टर्म्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ फिगर में 1 और 2 दिख रहा है। ठीक है, सो okay M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1 V1 plus M2 V2. ओके, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दोनों बच्चों ने, दोनों स्केटर्स ने हाथ ज्वाइन कर लिए, तो मतलब दोनों का मास एक साथ काउंट होगा और दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 प्लस M2 ब्रैकेट V, कॉमन V. वेलोसिटी, है ना? Yes. ओके, सो M1 is 60 multiplied by U1 5 meter per second plus M2 50 multiplied by U2 is 4 meter per second is equal to M1 plus M2, that is 60 plus 50 multiplied by V, that is their common velocity after collision. इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 multiplied by 5 is 300 plus 200 divide by 110 is equal to V, that is final velocity. So that is 500 divided by 110. कोई बता सकता है मुझे कैलकुलेशन? 50 divided by 11, 4 point something something, 9 something, 8 something, 4.54. 4.54 meter per second, is it? Yes, sir. एक गलती कर दी है मैंने, एक मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सर कहना है बहुत बड़ी गलती कर दी है। यस मानस, प्लीज मेरी गलती सुधारो। सर आपने जो 4 लिया है वो सर आपको नेगेटिव लेना था। करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो Yes, तुम। sir. Negative. हमें -4 लेना था, बिकॉज दोनों की जो वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक स्केटर राइट से आ रहा है, दूसरा लेफ्ट से आ रहा है, तो मतलब दोनों में से अगर राइट वाले की पॉजिटिव ले रहे हो वेलोसिटी, तो लेफ्ट की नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 200 is equal to 110 multiplied by V, that is 100 divided by 110 is equal to V. 10 by 11, can you tell me? 0.901 sorry 909 0.909 या फिर 0.91 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ ये मानस टूवर्ड्स राइट होगा या टूवर्ड्स लेफ्ट होगा? ये राइट है और ये लेफ्ट है। सर टुवर्ड्स राइट। यस, बिकॉज फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव है ना। इनिशियली भी हमने राइट वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी, फाइनल आंसर पॉजिटिव है, इसलिए ये होगा टूवर्ड्स राइट। करेक्ट? ओके, ये एक डाउट था, और वैसा ही और एक डाउट था आइसोलेटेड सिस्टम में 2 फिशेस का। अच्छा, स्मॉल फिश इज इन द माउथ ऑफ बिग फिश। अरे वाह, ये तो कर सकते हो ना? चलो कौन करेगा मेरे साथ ये? सर कहना है नहीं, किसी और को अपने को चांस देते हैं हम लोग। वेट, लेट मी सी। यहाँ पे चारुल, चारुल हेल्प मी यार प्लीज, चारुल प्लीज हेल्प मी। ये देख, एक फिश है, वो फिश 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है, उसका मास 6 केजी होना चाहिए ना मास? क्या है ये, मास तो दिया नहीं है, 6 मीटर क्यों दिया है यहाँ पे? 6 केजी होना चाहिए, और यहाँ पे मास, यहाँ पे भी मास कुछ नहीं दिया है। चलो यहाँ पे इसको 6 केजी ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 1 केजी ले लेते हैं। ठीक है, फॉर बिकॉज देर इज नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना। ठीक है, तो ये जो बड़ी फिश है छोटी फिश को खा जाती है। बड़ी फिश का मास 6 केजी है, छोटी फिश का मास 1 केजी है।
बड़ी फिश 1 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रही है और छोटी फिश 0.5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ आ रही है। ये दोनों टकराते हैं और बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाती है और फिर वो आगे जाती है, तो उसकी वेलोसिटी आगे कोलिजन के बाद कितनी होगी? चारुल, आई एम वेटिंग। सर ये मेरा ही डाउट है। हाँ तो अब तो बता ना, हेल्प तो कर मेरे को। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बाय द प्रिंसिपल Yes. ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है फॉर्मूला? चारुल, फॉर्मूला क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं? अभी तो किया था। हाँ सर। हाँ तो बताओ ना फॉर्मूला फिर। सर m1u1 is equal to m2u2 प्लस m2u2 m2u2 sorry इज इक्वल टू is equal to इसमें दोनों फिश आफ्टर कोलिजन बड़ी फिश छोटी फिश को खा गई, तो क्या होगा? दोनों का मास क्या हो जाएगा? सेम ऐड हो जाएगा। एक में- सेम सेम कैसे हो जाएगा यार? दोनों का मास ऐड हो जाएगा और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी, दैट इज v। उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। चलो बताओ अभी m1 क्या है? 6। u1 क्या है? 1। अब वो गलती नहीं करेंगे हम। m2 क्या है? माइनस m2 क्या है? m2 मास मास थोड़ी माइनस होता है बेटा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। m2 1 है। u2 क्या है? टेल मी। माइनस 0.5 करेक्ट। इज इक्वल टू m1 प्लस m2, 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय उनकी फाइनल वेलोसिटी जो हमें नहीं पता है, ठीक है? तो 6 1 जा 6। यहाँ पे 1 इंटू 0.5 कितना होगा? माइनस 0.5, ठीक है? इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाइड बाई v। ये हो जाएगा 6 माइनस 0.5 विच इज 5.5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू v। कैन एनीबडी टेल मी द आंसर? 55 बाई 70, 5 11 जा 5 14 जा 11 बाई 14 बता दो भाई कोई। पॉइंट में बता दो। Sir, 0.78. 0.7 8 कंफर्म करो। यस सर 0 हाँ, पॉइंट 0. प्लस आएगा Sir, ना, प्लस 7, 9. 0.78 या 9, ओके, मीटर पर सेकेंड। एंड दिस वुड बी टुवर्ड्स द राइट साइड, मतलब बड़ी फिश राइट में ही जाती जाएगी। उसकी जो वेलोसिटी है पहले 1 मीटर पर सेकेंड थी, थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो राइट में जाएगी। ठीक है, समझ में आया चारुल? यस सर Okay, next is 10th question. Body A collides with body B. A exerts force of 10 Newton on B. The force which B exerts on A is कौन बताएगा? चलो मैं किसी का नाम लेता हूँ। let's say तन्वी। किधर हो तन्वी? तन्वी और देर? Yes, sir. Yes, please tell me the answer. दो बॉडीज हैं, दोनों एक दूसरे Minus 10 Newton. Very good. Body A collides with body B. A exerts a force of 10 Newton on B. Then B will exert equal and opposite force. For every action has equal and opposite reaction. So minus 10 Newton. बहुत बढ़िया. Very nice. Question number 11. What do we mean by conservation of linear momentum? Under what conditions do we apply this concept? So let me give you this answer, and those who are having difficulty in framing answers, they also listen very carefully. See, if you want to develop your skill of framing answers, you should be a good listener and also you should be a good reader. ये दोनों क्वालिटी जब तुम अपने अंदर लाओगे ना, तुम अपने आप आंसर्स को फ्रेम करना सीख जाओगे। ठीक है, तो एक दो जब मैं लेक्चर देता हूं तो बहुत ध्यान से सुनो, नोट्स ले लो अच्छे से। दूसरा, जब मैं आंसर्स डिस्कस करता हूं तो मैं डाउट सॉल्विंग क्लास में, तभी भी ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें रेडीमेड आंसर प्रिंट किया हुआ दे दूंगा ना, तुम कभी नहीं सीखोगे।
It is always the conversation which helps you, better at framing answers. So I'm having a conversation with you, so I will use technical terms and English language for this conversation, so that you get this grip of framing answers, and you don't lose any marks over there. Okay, so first question is, what do we mean by conservation of linear momentum? So you can say that conservation of linear momentum means that for any body during its motion, its momentum remains conserved. That is, its momentum remains constant. If this body undergoes collision, ध्यान से सुनना, if this body undergoes collision, then its total momentum before collision and after collision remains constant, that is conserved. This is the meaning of conservation of linear momentum. Under what conditions do we apply this concept? This concept is applied under the condition of isolated bodies. When two or more isolated bodies are considered, when and these bodies, they collide, they exert force on each other, the linear momentum is always conserved. The linear momentum of all these bodies in isolation or an isolated system is always conserved. So the condition is the system should be isolated. ठीक है, ऐसे करके जो मैं तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन किया ना, अब तुम इससे आंसर तुम्हें बनाना आना चाहिए. सही है? किसका डाउट था ये 11th वाला? मानस, तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे बताया तुमको आंसर? Yes sir. Will you be Sir, able to actually frame the आपने answer? Yes sir. Actually आपने जो क्लास प्रो में जो क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए ना सर, हाँ, वो सर मतलब मैं वैसे नहीं चाहता था, मतलब आप जैसे अभी बात करते वक्त आपने एक्सप्लेन किया, मैं वैसा एक्सप्लेनेशन मांग रहा था सर. लेकिन मानस एक बात सुनो, मेरा जो पूरा लेक्चर यही बातों में होता है. पूरे लेक्चर को अगर तुम सुनोगे ना, तो यही बातें करता हूं मैं पूरे लेक्चर में, तो उसमें सारे आंसर छुपे हुए हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली कभी डिस्कस नहीं कर सकता. जब मैं लेसन एक्सप्लेन करता हूं मेरे वीडियो में, देन यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स एट दैट टाइम. उसी में से तुम्हें आंसर बनाने हैं. हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन तुम सीखना पड़ेगा तुम्हें कि मैंने जो तुम्हें कंटेंट दिया है उसमें से कैसे तुम एक्सर्ट्स निकाल के अपने आंसर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, सो आई कैन नॉट डिस्कस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ यू, बिकॉज देर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन. So what I do is I teach you the whole lesson. You have to create your own question and answers. Few of them here and there we can discuss sometimes, but this skill has to be built by you. You understand? Yes sir. Okay, great. Let's move to the next question. Question number 14. An empty rail car of mass 100 kg is at rest on the railway track. ठीक है, तो एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं. एक रेलवे ट्रैक है, सपोज ये वाला रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर एक एम्प्टी रेल कार है. ठीक है, ये रेल कार है, एम्प्टी है. ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है इसके साथ, इसका मास भी है, कितना है 100 kg. सो मास m1 इज इक्वल टू 100 kg एट रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, a body of mass 40 kg running with a speed of 5 meter per second jumps, a boy of mass 40 kg running with a speed of 5 meter per second jumps on the rail car. The speed of the car plus boy, that is the whole system, is how much after he jumps? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो एक लड़का आता है यहाँ पीछे से, एक लड़का आता है यहाँ पीछे से, जिसकी स्पीड है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड. कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में. ठीक है, ये तो रेस्ट पे था पहले. तो ये बॉय रन करके आता है, जंप करके सीधा ये ट्रॉली में अंदर जंप कर लेता है. तो क्या होगा पता है, ये बॉय का जो मोमेंटम है ना, अब वो ट्रॉली को मिलेगा. तो किसको लगता है ट्रॉली आगे जाएगी कि नहीं जाएगी आगे बॉय के साथ?
सर नहीं जाएगी। ओके हमें नहीं पता है क्योंकि हमें इसको कैलकुलेशन में डाल के फाइनल वेलोसिटी बॉय प्लस ट्रॉली की निकालनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा। ठीक है देखते हैं। तुम बोल रहे हो नहीं जाएगी, ठीक है देखते हैं। बॉय का मास कितना है? द मास ऑफ द बॉय m2 लिखता हूं यहाँ पे, इसका m1 लिखा है मैंने ऑलरेडी, 40 kg है। ठीक है सो हमें सारी डिटेल्स अब पता चल गई। अब नाउ बाय द principle of conservation of linear momentum we can say that total momentum before collision, before the boy jumped into the trolley, what was the total momentum? That was m1 u1 plus m2 u2, and total momentum after collision. Now since the boy jumps into the trolley, their mass will be added. Okay, so m1 plus m2 and their velocity will become common. तो यहाँ पे यही पूछा है वो लोग ने, द स्पीड ऑफ कार प्लस बॉय दैट इज द होल सिस्टम इज हाउ मच, दैट इज दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। सो व्हाट इज m1 u1? m1 u1 is 100 multiplied by 0. What is m2 u2? 40 multiplied by 5. What is m1 plus m2? 100 plus 40. And what is v? We don't know. ठीक है, सब्सटीट्यूट किया, 100 multiplied by 0 will be 0, 40 multiplied by 5 will be 200, 100 plus 40 is 140 multiplied by v. So 200 divided by 140 is equal to v. 0 0 cut, 2 10s are 2 7s are. ठीक है, so velocity will be 10 by 7. Can anybody tell me what is 10 by 7 equal to? 1.4 something, 1.43 1.42 और 43 ओके मीटर पर सेकेंड। तो कौन बोल रहा था कि ये आगे नहीं जाएगा ट्रॉली? उसको वो लोग पता लगा लो कि ये आगे जाएगा ट्रॉली विथ स्पीड ऑफ 1.42 मीटर पर सेकेंड। इट इज पॉजिटिव, सो ये ट्रॉली आगे जाएगा। समझ में आया कैसे करना है ये? फिजिक्स में कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करके समझना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हो तुम समझने के लिए। चलो 15th क्वेश्चन क्या है? द इनिशियल सिचुएशन ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन। दोनों के मासेस और वेलोसिटीज दिए हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ रहे हैं स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है? सपोज आफ्टर कोलिजन द टू ऑब्जेक्ट स्टिक, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट सिस्टम? अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं सॉल्व एग्जाम्पल में। तो क्या करेंगे? देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। m1 u1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 5 multiplied by 10 प्लस m2 u2 3 multiplied by -5। मैंने -5 क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि u2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2। क्यों m1 प्लस m2 लिया? क्योंकि दोनों स्टिक हो जाती है बॉडीज, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्टिकिंग कॉमन वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग ले लेते हैं v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना है? 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाइड बाई v। 50 minus 15 is 35 divided by 8 is equal to v. Can you tell me what is 35 by 8? 4.37 meter per second. 4.37. 4.4 meter per second. Okay, 4.4 meter per second, 4.37, that's the same thing. So this is positive. Can you tell me in which direction will the both bodies move after sticking to each other? Right or left? Right direction. Yes, they will both move in the right direction because right side वाली velocity positive है, final velocity भी positive है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि the both bodies will move towards right side. 17th क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा जानबूझ के because it is same like this engine वाला, this rail trolley वाला. Boy of mass 50 kg running at 5 meter per second jumps onto a trolley of 20 kg traveling in the same direction at 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी ट्रॉली रेस्ट पे नहीं है, ट्रॉली ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, ट्रॉली की भी स्पीड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉय जब ट्रॉली पे जंप करेगा दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा
और उनकी कॉमन वेलोसिटी हमें निकालनी है, सेम मेथड रहेगी, ठीक है। सो कैन यू डू द 17th वन, हुएवर हैज आस्क्ड मी, yes or no? Yes, I think Yes, sir. yes. So doubts are cleared or not? Sir, I have one more doubt. Yes, please, Charul. Sir, I did understand inverse square law. Yes, very good question. Let's understand inverse square law. Okay, so ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो इसके बाद है। मैंने आज एक इसका वीडियो भी बनाया है, लेकिन तुम लोग बाद में देख सकते हो, तुम्हारे लिए नहीं है, वो भी आईसीएसई बैच के लिए है, ठीक है। बट ग्रेविटेशन चैप्टर दोनों को है, और ग्रेविटेशन यूनिवर्सली एक ही कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग वही वीडियो से पढ़ेंगे। बट एनीवेज, क्योंकि आज हम लोग डाउट क्लास कर रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो मैंने तुम्हें तीन फोर्सेस के टाइप्स बताए थे, और वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तीन फोर्सेस है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में सब कुछ, और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। और ये तीनों फोर्स का एक कॉमन खासियत है, दैट इज दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? These three forces, non-contact forces, are inversely proportional to the square of the distance between the bodies between which they apply. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर तुम डिस्टेंस को डबल कर देते हो, इफ यू आर डबलिंग द डिस्टेंस, तो क्या होगा पता है? डिस्टेंस तो बढ़ गया, अब दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। बाय हाउ मच? The force will become 1/4 its original value. डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 1/4 हो जाता है, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, r/2 कर दूंगा, ठीक है, तो जो भी मल्टीपल से मैं डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैंने कौन से मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया चारों? 2 से मल्टीप्लाई किया, Sir, 2. तो 2 Yes, का sir. स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4. 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4. अरे रेसिप्रोकल बोल रहा हूं यार, 1/4। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4. हाँ, तो 1/4 से हमको फोर्स को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे कौन से मल्टीपल से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है? कैन यू टेल मी? डिस्टेंस को 2 से किया नहीं sir. बेटा, 1/2 से किया, नीचे वाले में। अच्छा. किससे किया मल्टीप्लाई? 2 से. 1। अरे यार, 1/2 से किया, r/2 अरे लिखा हाँ. ना। हाँ, यस सर. हाँ, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 1/4. 1/4। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अरे फटाफट बताओ यार, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है। 1/4 को उल्टा करोगे तो 4 मिलेगा, 4 को उल्टा करोगे तो 1/4 मिलेगा। समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल? हाँ, यस सर. हाँ, तो मेरे को बताओ कि फिर से पूछ रहा हूं, ये जो r है, r, उसको कौन से मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? 1/2. 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4. 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 4. हाँ, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे ना, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। डिस्टेंस कम किया, फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस को ज्यादा किया, बढ़ाया, तो फोर्स कम हो गया। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर से पूछता हूं और एक एग्जांपल के साथ। मैंने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया? 3. मल्टीपल कौन सा है? 3. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. 9 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/9। तो फोर्स किससे मल्टीप्लाई हो गया? 1/9 से। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/9 द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कम होगा या बढ़ेगा?
फोर्स बढ़ेगा। अरे कम हो जाएगा यार, डिवाइड बाय 9 कर रही हो, किसी एक नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाता है वो नंबर। क्या कर रही है चारुल? नहीं। वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड यार, इतना सिंपल है। डिस्टेंस बढ़ाएगी ना तू। ये देख, ये तेरा अर्थ है और यहाँ पे मून है, ठीक है। सपोज मून यहाँ पे नहीं होता, मून दूर होता है यहाँ पे, तो अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगाता या कम फोर्स लगाता? कम फोर्स लगाएगा बेटा, क्योंकि वो दूर चला गया। तो जितनी दूर होती है ना चीजें, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी कम होता है। ये तीनों फोर्स यही रूल फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। अभी समझ में आया चारुल? यस चारुल यस लास्ट सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें एक भी गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। मैंने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, मुझे बता फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया, फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? दोनों बॉडीज सर पास फोर्स आ गई। बढ़ेगा। हाँ हाँ सर, फोर्स बढ़ेगा। वेरी गुड। बताओ मल्टीपल बताओ, चलो इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाओ। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, लगाओ अभी यहाँ पे, अप्लाई करो। मैंने कौन से मल्टीपल से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है? 1/3। वेरी गुड। 1/3 को क्या करते हैं हम लोग बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ में? सर रेसिप्रोकल। अरे पहले स्क्वायर करते हैं। 1/3 को स्क्वायर कर, स्क्वायर कर। 1/9। वेरी गुड। 1/9 को रेसिप्रोकल कर। 9। 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? फोर्स। हाँ, तो अगर डिस्टेंस 1/3 किया ना, तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यही है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। यस। ओके ओके ओके। सो ये चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया और वी आर डन विद एवरीथिंग। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग पार्ट।